हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 25, जिसमें आज हम करेंगे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप। इसका अर्थ यही हुआ कि सामाजिक आर्थिक विकास तथा जो है अभावग्रस्त समूहों का जो है सशक्तिकरण। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। ये टॉपिक रहेगा कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो। इवन कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको जो है विस्तार पूर्वक पढ़ना है, समझना है, तो उसकी उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is the most important here, human development. This is the most important topic that I have here, human development. As we have seen, when we talk about the economic development, the focus is on the income only. For a long time, the general notations about the development was a accumulation of the wealth or economical assist. The human development of focus on the spending and weddings on the people as a choose as well as the rising their level of well-being. It's a cover almost all the aspect of human life and people as a choose like economic, social, political, culture and educational, physiological and biological, mental and emotional. Income is only one of the many components of development. Human development place a people at the center of development and emphasizes that the purpose of development is to enlarge all human choose and not a just income. It's regard economical growth as a stimuli, but emphasizes there a need to be pay attention to its quality and distribution. You may be now to understand that if the social economical development of a country is the models along human development frameworks, it can provide a better understanding of development and its impact on the quality of the life of the people. We may be appreciate it is a better manner when we try to understand the human development index, means HDI, and development as a mean to the measuring to human development. The basic use of HDI there is the measuring of country level of development. The human development index HDI is combined the three basis indicator and the dimension here. Let's see human development index and indices and dimensions here. On your screen there is the most important here, indices and dimensions. A long and the healthy life. Life benefits of birth as index of the population, health and longevitives. And second here, knowledge and education here. Adult literacy rate and the combined to primary, secondary and tertiary gross environmental ratio. And the next year, a standard of living is a gross domestic product, GDP per capita at a purchasing power, purity means PPP. PPP means purchasing power parties, and United States dollars. This is important here, density standard of living here. The analysis of human development, the report published in 1990 indicates that India is away to the pace almost all the bottom of the table in the medium level category.
Out of 177 countries included in the report, India as a rank was 128 in the year of 2007 to 8. The government of India has also made an attempt to be developed state visa wise the Human Development Index here. The figure 2.52 is observed that a variation among to the state. Let's see the map here. On your screen, there is a most important Human Development Index here. You know that there is a most important Human Development Index here. The blackest shadow here show here 0 to 500 growth higher. But here is the most important, the light, dark, there is the moderate of here. And there is a low is show here. There is the where is the low level? There is important. On your screen, the high level is show here Kerala side, Maharashtra, Punjab. But other is a moderate here show Kolkata, Gujarat, and some part of important. And the other is here our lower part almost all over the country. There is a most important on your screen Human Development Index on a map here show. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है मानव विकास, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है मानव विकास। जैसे हमने देखा है कि जब हम केवल आर्थिक विकास के बारे में बात करते हैं तो हमारा ध्यान केवल आय पर ही केंद्रित होता है, क्योंकि आर्थिक विकास का मतलब ही होता है आय, और आय जो आप अर्न करते हो। एक लंबे समय के लिए विकास के बारे में सामान्यतः धारणा धन या जो है आर्थिक संपत्ति का संचालन भी करना होता है कि आप धन और आर्थिक संपत्ति का जो है संचालन किस प्रकार करते हैं। लेकिन मानव विकास का अर्थ है लोगों को पसंद का उनके हितों में फैलाव या विस्तार, कि आप उसका जो है उनके हितों में कैसे इसका विस्तार और फैलाव कर रहे हो। और ये मानव जीवन के लगभग सभी पहलुओं और लोगों के पसंद या विकल्पों को शामिल करता है, जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, भौतिक, जैविक और मानसिक और भावनात्मक। ये सारे के सारे वो पहलू हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, यानी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, भौतिक और जैविक और सामाजिक और भावनात्मक। आय विकास के कई घटकों में से केवल एक घटक है और मानव विकास लोगों को विकास के केंद्र में रखता है तथा मानता है कि मानव विकास का अर्थ लोगों के लिए विकल्प का विस्तार करना है, और यह आर्थिक विकास की गुणवत्ता और इसके सामान्य वितरण पर ध्यान देने की आवश्यकता पर काफ़ी जोर देता है। तो मानव विकास काफ़ी महत्वपूर्ण होता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो आर्थिक से संबंध हो, सामाजिक, राजनीतिक, संस्कृति या शैक्षिक, भौतिक या जैविक या मानसिक और भावनात्मक, सभी के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर रखता है। अब आप समझ सकते हैं कि एक देश का सामाजिक आर्थिक विकास का मॉडल मानव विकास के ढांचे के अनुरूप तैयार किया जाता है, कि जैसा मानव आर्थिक होता है, विकास होता है, उसी तरह से जो है इसके ढांचे भी तैयार करना जरूरी होता है। और ये विकास को सही ढंग से समझने में सहायता भी करता है। HDI का वास्तविक उपयोग देश के विकास स्तर को ही मापना होता है, यानी HDI का जो मेन पर्पस होता है देश के विकास को ही मापने का होता है। मानव विकास सूचकांक यानी HDI 3 आधार संकेतों और उनके आयामों के साथ संयुक्त रूप से दिखाई पड़ता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलिए इसी बात को जो है टेबल पे भी देखें कि मानव विकास सूचकांक संकेतक आयाम किस प्रकार जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर आप भली भांति देख सकते हो, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। सूचकांक दर्शाया गया और परिणाम दिखाया गया है। कहते हैं एक लंबा और स्वस्थ जीवन, यानी जन्म के समय जीवन प्रत्याय जन स्वास्थ्य और दृढ़ आयु के लिए एक सूचकांक के रूप में दिखाया जा सकता है परिणाम। ज्ञान और शिक्षा के रूप में देखें तो प्रौढ़ स्तर पर जो है प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीय स्तर पर जो है सकल नामांकन अनुपात, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और जीवन का उपयुक्त स्तर जो होगा सकल घरेलू उत्पाद, GDP, प्रति व्यक्ति आय, खरीद संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर में, जो है शक्ति समाप्त PP खरीद पर प्रति व्यक्ति, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सारे के सारे जो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉलर के आगे जो है प्रति व्यक्ति आय या खरीद जो है होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शाया गया है। 1990 के दशक में प्रकाशित प्रत्येक मानव विकास रिपोर्ट में भारत को हमेशा निचले श्रेणी में ही रखा गया, और भारत आज भी उसी श्रेणी को जो है फॉलो कर रहा है। कारण क्या है कि भारत बेशक ही आगे बढ़ चुका है, लेकिन इस भारत का जो है HDI जो है अभी तक विकसित नहीं हुआ है। और रिपोर्ट में शामिल 177 देशों में भारत को जो है वर्ष 2007 से 8 में 128 स्थान रखा गया। अब देखिए 128 स्थान होना
बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारत अभी भी विकास के राह पे जो है 100 किलोमीटर दूर नज़र आता है। भारत की सरकार ने कि में राज्यवार मानव विकास सूचकांक विकसित करने का प्रयास किया गया है, जो कि यहाँ चित्र में भी दर्शाया जा सकता है, और हम मैप को भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि मैप में भारत की क्या स्थिति है। चलिए देखते हैं मैप और उसे समझने की कोशिश करें कि भारत में जो है HDI का क्या स्थिति भारत में, यानी मानव विकास सूचकांक का भारत में किस दशा में प्रेजेंट है। अब इस मैप में आप साफ तौर पे देख सकते हो कि भारत का जो है मानव विकास सूचकांक किस राज्य में किस अवस्था में है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो लोअर अवस्था में, जहाँ पर 0.472 से भी बिलो है, पूरे भारत में नज़र आ रहा है। तो भारत कैसे डेवलपमेंट बन सकता है, संभव ही नहीं है। सिर्फ आप देख सकते हो कि 5 से अधिक सिर्फ कुछ ही राज्यों में, महाराष्ट्र, पंजाब के साइड, और दिल्ली भी इंक्लूड है, हरियाणा भी इसी में इंक्लूड है, बट केरल भी इसमें नज़र आ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कुछ ही राज्यों में हाई होने से क्या होने वाला है। और देखा जाए 4 से अधिक जो है 0.4 से जो कुछ ही राज्य में, जैसे गुजरात दिख रहा होगा आपको, कलकत्ता कुछ राज्य हैं, लेकिन जहाँ पर निम्न स्तर हैं उन राज्यों का क्या भारत ऐसे में आगे बढ़ पाएगा जैसा मानचित्र में यहाँ नज़र आ रहा है? संभवतः ही नहीं है, बहुत दुष्कर्म कार्य है, लेकिन फिर भी ये उम्मीद किया जाता है कि क्या पता देश आगे बढ़ेगी और भारत जो है आगे मानव विकास सूचकांक में आगे बढ़ेगा। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक अच्छे नंबर पे है, यहाँ पर कहते हैं 6 को अच्छा माना गया है, लेकिन भारत तो 0 से 500 के बीच में हाई और कुछ ही राज्यों में है। तो देखिए 6 से भी कम है। तो एक बहुत दुखदायक परिस्थिति यहाँ पैदा कर रहा है मानव विकास के अंतर्गत। तो नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट here, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट here, सस्टेनेबल डेवलपमेंट here. As we all observe and feel, we are using the natural resources almost careless to meet our needs. Know that there is a true. The Indian people, their almost use of natural resources are careless to our needs. This is the most important things here. It is said that the number of minerals like coal, petrol and many more, this will be a last only for a few decades. This is the most important if you go on using them at the present rate. Future generation will be not have to facilitate of using this resource. It is a fair for our generation to deprive their future generation of these resources. The concept of sustainable development has emerged in his context. It is about to concept that is defined as a development that meet their need of the present without compromising their ability of future generation to meet their own needs. This is the most important terms here. Development that meet the needs of the present without compromising their ability of future generation to meet their own needs. There are many things that it is relevant only in the environmental context. It actually does not focus solely on environmental issues. As shown in the figure below, it is includes economical development, social development, and individual development and environmental development. It is a pattern of social and economical transformations. Development that is optimize their economics and societal benefit are available in the present without adversing effect in their lack of potential for a similar benefit in the future. A primary goal of sustainable development is to achieve a responsible and equitable distributed level of economic and social well-being that can be perpetuated as a continually for many human generations. It takes care of the needs and requirements of all sections of the society, including their disadvantaged group also. On your screen, there is a most important diagram here. Sustainable development. Sustainable development included here social development, economical development, and individual development, and also is environment development. There is a most important diagram here. Sustainable development on the both side here. यदि बात यहाँ पर हम करें संधारणीय विकास की तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। संधारणीय विकास बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने ये देखा है और महसूस किया है
कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम प्राकृतिक संसाधनों का बड़ी ही लापरवाही से प्रयोग कर रहे हैं। यदि हम अपनी वर्तमान गति से इस संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं तो कई खनिज पदार्थ जैसे कोयला, पेट्रोल कुछ जो है दशकों में समाप्त हो जाएंगे तथा हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। क्या हमारी पीढ़ी का भविष्य का पीढ़ियों के लिए ऐसा करना उचित होगा? जैसे हम जो है संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं बिना सोचे विचारे, आने वाला समय में हमारे पीढ़ियाँ जो है शायद इन चीज़ों से जो है अनभिज्ञ रह जाएगी। साधारणीय विकास की अवधारणा का उदय उसी संदर्भ में हुआ है। यह एक विविध अवधारणा है। इसे इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि साधारणीय विकास जो है धारणीय विकास का वह प्रतिरूप है जो हमारे वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा भविष्य की पीढ़ियों भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, इस बात का ध्यान रखता है। और ये सिर्फ बातें कागजी बातें हैं। अगर देखा जाए वास्तविकता में आम जीवन में तो इसको ऐसे उपयोग कर रहे हैं जैसे उन्होंने आगे भविष्य के लिए छोड़ना ही नहीं इनको। ये बात तो यहाँ पर बात ही लिखी गई है कि हमें ऐसे उपयोग करना चाहिए कि आने वाला भविष्य भी उसका बखूबी उपयोग कर सके। जबकि कई लोग सोचते हैं कि सतत विकास की उपयोगिता केवल पर्यावरण के संदर्भ में है, पर वास्तव में यह केवल पर्यावरण के मुद्दे पर ही जोर नहीं देता है, जैसा कि चित्र में भी दर्शाए गए हैं। हम चित्र भी देखेंगे जिसमें देखेंगे कि ये जो है मुद्दा सिर्फ पर्यावरण को ही नहीं दर्शा रहा है, ये आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, व्यक्तिगत विकास, पर्यावरण विकास आदि सभी को ही सम्मिलित किया है। और यह सामाजिक आर्थिक बदलाव का एक प्रतिरूप सिर्फ माना गया है। उदाहरण के लिए विकास का ऐसा मॉडल जो वर्तमान पीढ़ियों को उपलब्ध अधिकतम सामाजिक आर्थिक लाभ प्रदान करता है तथा भविष्य के पीढ़ियों के इन लाभों को प्राप्त करने की क्षमता पर भी नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता है। और इस प्रकार धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य सामाजिक आर्थिक लाभों का जो है युक्ति संगत और न्याय संगत विकास है, जिससे मानव जाति के आने वाली कई पीढ़ियों का जो है निरंतर बनाए जा सके। इसमें समाज के सभी वर्गों, कमजोर और वंचित वर्गों सहित की आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है। अब चलिए चित्र भी देख लें जिसमें किस किस बातों को प्रायोरिटी दी गई है। इस चित्र में आप भली भांति देख सकते हो कि जो है सतत पोषी विकास जो है सिर्फ पर्यावरण को ही नहीं ले रखा है, ये सामाजिक विकास को भी ले रखा है, आर्थिक विकास को भी, व्यक्तिगत विकास और पर्यावरण विकास, यानी ये चार तरफा है। चारों तरफ से जो है ये डेवलपमेंट कर रहा है, जो कि हमारे आने वाले भविष्य के लिए काफ़ी सुखद हो सकता है। लेकिन अगर ये बात अगर सही रूप में रहा तो, लेकिन देखा जाए जैसे लोग व्यक्ति जो है यूज़ कर रहे हैं संसाधनों का, लगता नहीं है कि उनका जो है मकसद भविष्य के लिए जो है संसाधनों को बचाए रखना है, क्योंकि समझना तो हर एक व्यक्ति को पड़ेगा इसके अंतर्गत। The next topic is the most important here, social economic development in India. There is the most important terms here, social economic development in India. We have discussed so far various aspects of the significance issue related to the fourth concept: development, social economic development, human development, and sustainable development. Based on our appreciations of this, let us now try to understand there is a social economic development taking place in India. Through there are various effort has been to made for the development of country right from the day the country become independent. It is signed 1990 that India has emerged as one of the fastest growing economic in development in the world. It is the most important here. The 1990 that India has emerged as one of the fastest growing economies in the development of the world. It is said to be the economical of India is the 12th largest in the world by the market exchange rate and the 4th largest in the world by the GDP. The measuring on the purchasing power priority means PPP is a basis. This is important here. This has been to accompany by increasing in the life expenses and the literacy rate and attainment of food security. There has been to significant reductions in poverty. Third, there are official figures estimate that 27.5% of Indians still live below their national poverty lines of $1. There is a $1 means PPP, around 10 rupees in the nominal term. A day in 2004-2005, it's also said that India's recent economic growth has widened economic inequality across the country.
And therefore, there is a substantial high economical growth rate. Approximately 80% of the population live on the less than US dollar of 2 a day. Is PPP. Even though there is a right to the green revolution, both an end of the famine in the India is ensure the food for the entire population. For 4% of children under the age of 3 are underweight, and third of the man and women suffer from the chronic energy deficiency. This is a very sadness here. There are 40% of children under the age of 3 underweight, and third of all women and men there is a chronic energy deficiency. This is a very sadness here. Comprehension was based on the per capita income, but this was the abandoned by the most of the international organization because it was given a misleading picture. It is well now that purchasing power of different currency and price substitutability is, for example, US dollar is here can be fear of goods and service in the United States than rupees 50, which is equivalent of US dollar can do in the India. Therefore, by the investing Indian currency equivalent of dollar 1,000, and one can be have a much better understand by living in India than that is USA by the investing the same amount. देखा जाए तो भारत में सामाजिक आर्थिक विकास, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत में सामाजिक आर्थिक विकास किस प्रकार हो और कैसे जो है हम अपने आप को पावरफुल बनाएं। अब तक हम 4 अवधारणाएं के बारे में विस्तार पर चर्चा किए हैं। विकास हो, सामाजिक आर्थिक विकास हो, मानव विकास हो, ये साधारणीय विकास के रूप में चर्चा कर चुके हैं और इसके विषय में हमारी जानकारी के आधार पर भारत में हो रही सामाजिक आर्थिक विकास को समझने का प्रयास करेंगे। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये ही देश के विकास के लिए कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन ये 1990 का वर्ष था जिसके पश्चात भारत की गिनती विश्व की तेज़ी से बढ़ती विकासशील अर्थव्यवस्था में होने लगी और भारत बाजार विनियम के आधार पर विश्व की 12वीं और सकल घरेलू उत्पाद में GDP के जिसका मापन खरीदी शक्ति से मापन पेंजिंग्स पावर प्रायोरिटी NPP के आधार पर किया गया और दुनिया के चौथे बड़े अर्थव्यवस्था था। तो ये देखिए बात काफ़ी इम्पोर्टेंट भी थी, लेकिन कहा जाए तो वहाँ पर अगर हमने देखा कि जो मानव विकास सूचकांक है उसमें भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय है। कहते हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें जिससे जो है भारत की तुलना किया जाए तो ये काफ़ी जो है अलग हमें दर्शा सकता है। आर्थिक विकास दर में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप देश में जीवन प्रत्याय, साक्षरता दर तथा खाद्य सुरक्षा में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। देखा जाए तो बढ़ा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन निर्धारित प्रतिशत में भी बहुत कमी आई है। यद्यपि सरकारी अधिकारी गणनाओं के अनुसार लगभग 27% भारतीय अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यानी 27% काफ़ी अधिक होता है। जो जीवन जो है गरीबी रेखा के से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यानी गरीबी रेखा से भी नीचे हैं, गरीब नहीं है, गरीबी रेखा से भी नीचे हैं। 2004 से 5 के आधार मानते हुए इन लोग गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है, जिनकी आय क्रम शक्ति क्षमता के आधार पर $1 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो, यानी $1 अगर आप कमा रहे हो तो इसका मतलब आप जो है काफ़ी सही हो। जो $1 से कम पैसा कमाता है प्रतिदिन तो समझिए वो गरीब है, यानी $1 यानी 60 रुपया, 60-64 रुपया तो है ही है इसका वैल्यू भारतीय पैसे में $1 का। समझिए जो $1 से कम कमाता है वो गरीब है और जो $1 से अधिक कमाता है वो अमीर है। ये हमारा जो है नापने का तरीका है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय। अब ये समझिएगा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, सिस्टम नहीं है, ये नापने का तरीका है प्रति व्यक्ति आय। हालांकि भारत में इसका पैमाना $1 से भी कम रखा गया है। तो समझ सकते हो भारत में गरीब वो व्यक्ति हैं जो $1 से भी कम पैसा कमा रहे हैं। तो सोचिए ये कहाँ का जो है न्याय उचित बात आ रही है। क्या आप अगर $1 से कम कमा रहे हो तो इसका मतलब गरीब हो, $1 से ऊपर कमा रहे हो इसका मतलब अमीर हो? ये संभव तो नहीं हो सकता ना। भारत में पिछले 2 दशकों में लगातार तीव्र आर्थिक वृद्धि के बावजूद देश के लगभग 80% जनसंख्या आज भी $2 प्रति व्यक्ति से भी कम जीवन निर्वाह कर रही है। अब देखिए ये कितनी बड़ी विडंबना है कि भारत के 80% जनसंख्या आज भी $2 यानी 120 या 25 रुपया $1 प्रति व्यक्ति दिन से भी कम जो है निर्वाह कर रही है। अब समझिए
जब $2 से भी कम यहाँ पर निर्वाह कर रही है, तो हम कैसे अर्थव्यवस्था में विकसित हो गए हैं? क्या ये एक दिखावा नहीं है, सिर्फ एक बात नहीं है झूठी? यही कारण है कि कई बार कहा जाता है कि इस बाजार अर्थव्यवस्था का आधारित आर्थिक विकास के कारण देश में आर्थिक असमानता काफ़ी बढ़ी है। आज देखा जाए तो अमीर अमीर हो रहा है और गरीब होता चला जा रहा है, और ये चलता ही रहेगा। अगर ऐसा हालत चलता रहा तो जर्नल सी बात है, हम कभी विकसित नहीं हो पाएंगे। हरित क्रांति से अकाल और भुखमरी तो छुटकारा तो मिला है। कहते हैं हरित क्रांति ने हमें अकाल और भुखमरी से छुटकारा दिया है, लेकिन आने वाला समय में भुखमरी और अकाल अब फिर से आने वाली। क्योंकि कारण क्या है कि जिस पे हम हरित क्रांति के जो है झंडे लहरा रहे हैं, जिन जगहों पे, वहाँ पर अब जो है शहरीकरण हो गया है। और हरित क्रांति के लिए ज़मीनों का होना बहुत ज़रूरी है, तभी उत्पादन होगी। लेकिन अगर आप हर क्षेत्र में फैक्ट्री घरें बना दोगे तो हरित क्रांति कहाँ से आएगी? तो फिर भी आ जाएगा वही भुखमरी अकाल का, फिर से हमें झेलना है। समूची जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उपलब्ध बड़ी, लेकिन देश में 3 वर्ष तक की आयु के जो है 40% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। अब देखिए 40% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और 1/3 स्त्री पुरुष जो है ऊर्जा की कमी से पीड़ित है। अब फिर भी हम कह रहे हैं कि हम विकसित देश बन रहे हैं, ये कहाँ की उचित है? कहते हैं ख्वाबी पुलाव पकाने से कुछ नहीं होता है। कहते हैं दूर का ढोल जो है सुहाना होता है। तो ऐसे करने से कुछ भी नहीं होगा, आंकड़े गिनने से नहीं होगा, जाके ज़मीनी हकीकत को देखना है, तब भारत विकसित हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो है क्रम शक्ति समाप्ति यानी PPP, ये विभिन्न देशों की मुद्रा की क्रम शक्ति को मापने का एक तरीका है, और यह अलग अलग देशों में लोगों के जीवन स्तर की तुलना करने में उपयोगी भी है। पहले ये तुलना प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जा रही थी, लेकिन ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसका प्रयोग करना छोड़ दिया है, क्योंकि यह भ्रामक तस्वीर पेश करती है। जैसे कि मैं अभी भी बता चुका हूँ कि ये अच्छा दर्शाया जा रहा था अभी, लेकिन देखा जाए तो हर तीसरा व्यक्ति जो है, जो पुरुष हो या स्त्री हो, कहते हैं ऊर्जा के इस मात्रा में पूरा नहीं ले पा रही है, और 40% बच्चे जो है कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। तो कहते हैं ये PPP जो थी एक भ्रमकारी थी, सिर्फ भ्रम तस्वीर पेश करती है, और अलग मुद्राओं की क्रम शक्ति भी भिन्न होती है। उदाहरण के लिए $1 में अमेरिका में जितनी चीज़ें खरीदी जा सकती है, उसी डॉलर की कीमत अर्थात लगभग $50 में भारत में कई अधिक वस्तुएं खरीदी जा सकती है। और इसी प्रकार $1000 भारत में निवेश या खर्च कर एक व्यक्ति भारत में अच्छा जीवन स्तर रख सकता है, लेकिन यही राशि अमेरिका में एक अच्छा जीवन स्तर नहीं दे सकती। तो जर्नल सी बात है कि दूसरे के पैसे के साथ अगर आप तुलना कीजिएगा तो ये बेटर नहीं है। अब अपने करेंसी के साथ तुलना कीजिए और तब देखिए कि भारत की स्थिति कैसी है। क्या भारत सच में ग्रोथ के राह पे चल रहा है? तो ये सारी आईना आपको साफ नज़र आ जाएगी, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसी के साथ हमारा टॉपिक भी खत्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे, समझ में लगा, ज़रूरत है समझने की, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कुछ भी खामी है तो कमेंट भी कर सकते हो। अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो एक काम अवश्य कर सकते हो कि यूट्यूब से लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा सकते हो। और पहली बार वीडियो देख रहे थे, अगर अच्छा लगा, समझ में आया, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी जो है आपको 8 से लेकर एमए तक बच्चों की सारी वीडियो यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, चलो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।